Hello friends, this is a lecture of PH 1501 vector analysis. In this lecture, we will be focusing on a differential calculus. Now basically there is always question, what does derivative do? Basically it tells us how rapidly the function is varies with the change in an argument. Let us say over here f is the function. So how the function f is changes with respect to the x. So if I change the function, the variable in a dx manner, then what is the change in the function? And that is what the geometrical representation, the derivative is referred to, write it out like df by dx. In principle, it nothing but it is a slope. So the rate of change of f of x with respect to the variable x. So now in case of vector, where how I can use it. So this is a outline I mentioned here. Let's I do have a ordinary vector a, then how I can multiply it. So I do have a one scalar a and I am multiplying with the vector a. The other way of multiplying is the vector b can multiply to my vector a, and that would be via dot product, and in general it is also known as a scalar product. So the result of a dot product is a scalar. So it is also commonly called as a scalar product. The same vector a also can multiply by the same vector b, and that is known as a cross product. This is all we have seen, a cross b. Rather you have seen in your 11th and 12th grade too. But now, as we had just mentioned about the derivative, and there is one new operator you might be learning, and which is known as a delta. In Greek alphabet, this is referred as a capital delta or a large scale delta, and there is a small scale, then the delta is also, you are knowing, it looks like the terminology of a Gujarati alphabet, something like that. Anyway, so here that del function can apply on a function. So del operator, can apply on any function. That I do have a function t. So I can apply the del over a t. So this is referred as a del t. In general or in vector analysis, we utter as a gradient of t. The other way of application of del operator is with dot product as well as with the cross product. So a vector function v via the dot product using a del function, del operator, then it would be del dot v, commonly called as it is divergence. So when a del operator is applying on any vector, it is nothing but a dot product with that particular vector. In vector analysis we will refer them as a divergence. माने किसी का डाइवर्जेंस लेना, कोई वेक्टर का डाइवर्जेंस लेना, माने अ डेल ऑपरेटर उस पे डॉट प्रोडक्ट की तरह अप्लाई करना, माने डेल ऑपरेटर with a dot product with any particular vector is known as a divergence. दूसरी बात, on a vector function v via cross product also we can apply the del operator. तो उसमें हम लिखेंगे del cross v और the vector v, and this is known as a curve. इससे पहले भी हमने कल देखा था, उसमें भी सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट थी,
लेकिन वहाँ पे दो क्रॉस प्रोडक्ट थी, जहाँ पे ऊपर आप देख रहे हो जैसे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो वहाँ पे ये भी कर्ल ही है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे del cross v. This is commonly known as a cross product, but when we are using a del operator on any v vector function vector, then it is referred as a curl. Let's discuss gradient in detail and later on the divergence. Now, as it is mentioned in this slide, suppose you have any function. Let us I do have a function, and as it is example has taken, it is a temperature, so is a T. Now let us say I am measuring a temperature in a room. So that particular point where I am interested to measure the temperature, so in a normal Cartesian coordinate, the point T can be represented with the three coordinates, that is x, y and z in this room. Now let us say you are move the position of the coordinate x, y and z, so all the values of x and y and z will be changing, and we are knowing that when we change the position, the temperature has to change, correct? So how the function t varies with the variables, that is on which it do depends, जिस पे वो फंक्शन आधारित है, अगर वो आधारित तीन वेरिएबल्स या दो वेरिएबल्स को हम चेंज करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन ग्रेडियंट के थ्रू हमें मिल सकती है. नाउ इन जनरल इट इज़ नथिंग बट अ डेरिवेटिव. सो बेसिकली वी आर टेकिंग अ derivatives of any functions, but as we have seen in a previous slide, let me take you back over there. सो डेल ऑपरेटर तीन तरह से अप्लाई कर सकते हैं. एक डॉट प्रोडक्ट, उसको हम डाइवर्जेंस बोलेंगे, एक क्रॉस प्रोडक्ट, उसको हम कर्ल बोलेंगे, और एक सीधा काइंड ऑफ अ डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, एंड दैट इज कॉल्ड gradient. So right now we are talking about a gradient. So gradient is basically application of a del operator on any function. Now if we are taking the same case again, a temperature of a room, तो अगर यहाँ ध्यान से आप देखो तो किस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है. मान लो कि कोई x कोने में अगर सोर्स पड़ा है, तो अगर वही कोने की तरफ अगर आप मूव कर रहे हो, देन द टेम्परेचर में इंक्रीजेस. दैट मीन्स अल्टीमेटली द फंक्शन विल इंक्रीजेस. अगर आप x की विरुद्ध दिशा में जा रहे हो, सो नेचुरली द टेम्परेचर विल डिक्रीजेस. और अगर आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो, मान लो y की तरफ, तो टेम्परेचर ड्रास्टिकली डिक्रीजेस. और अगर थोड़ा x और थोड़ा x दिशा में आगे बढ़ रहे हो, तो इट रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट. सो इट्स डिपेंड हाउ टेम्परेचर is changing within a room, but this information can be retrieved using a gradient, that means application of a del operator on any particular function. यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ. let us say this is a f is a function, its small variation with respect to the x. एक दूसरा फंक्शन है which is drastically changing, exponentially increasing with respect to x. so यहाँ पे फंक्शन f का बिहेवियर विथ रिस्पेक्ट टू x डायरेक्शन दिया गया है, ताकि आपको पता चले. ऐसा हो सकता है कि टेम्परेचर बहुत स्मॉल वेरिएशन में आ रहा हो, ये भी एक दिशा में पॉसिबिलिटी है. मान लो कि आप x की तरफ ही आपका सोर्स पड़ा है. सो व्हेन यू मूव इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन द
temperature function or that function will drastically changes. So it's do depend on. Now derivative of that particular function temperature T, and we are not taking a derivative, we are taking a partial derivative. That means the T function with respect to partially derivative with the dx del x, so del T by del x dx. This small dx is nothing but a small variation in x direction. Same way change of that T function with respect to y when you are changing a small y direction. Same way the change in the function t with respect to z direction when you do the small variation in the dz. Now how exactly the derivative dt is appears, let us look at that in the next slide. So when you apply the del operator on any particular function, over here we have chosen the function of a temperature function T, then basically what it is? It is something like del, that means a del by del x x cap plus del by del y y cap plus del by del z z cap over a T. So del operator is nothing but this bracket. Are you getting me? So this bracket is nothing but a del operator. So del operator, that means if I will ask in the exam what it mean by del, so you should not write the t over here, it should be only the first bracket, that is del by del x x cap, del by del y y cap, del by del z z cap. So that is what the mean of a del operator. So it is written here, you can read it out over here. The term in the parenthesis is called a del. So how it is uttered, कैसे बोला जाता है, तो उसका उच्चारण यहाँ पे दिया गया है a del. Okay, so now del is given by as the equation 39. So del is basically a vector operator. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ वहाँ पे ध्यान दीजिएगा. So basically it is a वेक्टर ऑपरेटर. इसका मतलब ये हुआ कि कोई स्केलर फंक्शन पे जब डेल ऑपरेटर लगता है सो आउटकम बिकम ऑलवेज वेक्टर. तो कोई स्केलर ऑपरेटर पे जब आप स्केलर फंक्शन पे जब आप डेल ऑपरेटर लगाते हो तो आउटकम रिजल्ट, दैट इज़ अ ग्रेडियंट, विल गिव्स अस द इंफॉर्मेशन दैट इज़ अ वेक्टोरियल आउटकम. माने अब वो स्पष्ट चित्र आपके सामने दे रहा है कि x की दिशा में अगर आप थोड़ा भी मूव करो सो डेल बाय डेल एक्स एक्स कैप की तरह वो चेंज होगा फंक्शन, राइट. सो डेल टी बाय डेल एक्स एक्स कैप की तरह वो चेंज होगा. y की दिशा में थोड़ी मूवमेंट करो तो इस तरह से चेंज होगा. सो एक पूरा फंक्शन का विवरण हमारे पास मिल जा रहा है. Furthermore, it does not multiply with the t, rather it is an instruction to differentiate what follows. To be precise, then we say that del is a vector operator that acts upon a t. तो बेसिकली आप एक सीधा साधा, मैंने अभी बताया था कि वो जैसे ही सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऐसे लिखने में आपको दिख रहा है, लेकिन वो एक्चुअली क्या है कि डेल इज़ अ वेक्टोरियल ऑपरेटर विच इज़ अप्लाइंग ऑन अ वन स्केलर फंक्शन. तो आउटकम क्या आएगा, वेक्टर आएगा. बहुत ध्यान से ये चीज़ याद रखना. ओके, सो देर आर फ्यू एग्जाम्पल्स. सो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ग्रेडियंट हमें पता चला कि नहीं पता चला. Very nice examples are given over here. Okay, so find the gradient. Problem number 11. Find the gradients of the followings: x square plus y cube plus z cube. So इस पे मैं डेल ऑपरेटर यूज़ करूँगा. डेल ऑपरेटर माने क्या, मेरा फंक्शन यहाँ पे क्या है, डेल आई मीन एफ ऑफ एक्स वाई जेड. याद रखना कि ये जो फंक्शन है वो स्केलर फंक्शन होना चाहिए. यहाँ पे सभी भी एग्जाम्पल आप देख लो, किसी में भी डायरेक्शनल
डिपेंडेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट मीन्स दे आर स्केलर फंक्शंस। एफ जो भी लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है वो सभी स्केलर फंक्शन है, ठीक है। और जब उस पर आप डेल ऑपरेटर लगाओगे और जो पार्शियल डेरिवेटिव आप मैथमेटिकली अगर मैं समझाऊँ तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव डिफाइन करना है, फाइंड आउट करना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव जब निकालोगे सो दैट वुड बी योर gradient, so result will be referred as gradient f, okay। so gradient of f, so यहाँ के अगर देखो तो इसका फर्स्ट x का डेरिवेटिव माने यहाँ पे क्या होगा, डेल f बाई डेल एक्स एक्स कैप। सो इसका डेरिवेटिव डेल f बाई डेल एक्स अगर पूरा लो तो y का x के साथ डेरिवेटिव नहीं हो रहा है तो वो ज़ीरो हो जाएगा, z का नहीं हो रहा है तो वो ज़ीरो हो जाएगा, x का x के साथ होगा सो एक्स स्क्वेयर का हो जाएगा 2x। सो यहाँ पे मैंने 2x लिखा और x कैप प्लस 3y स्क्वेयर y कैप प्लस 4z स्क्वेयर क्यूब z कैप। सो इन नटशेल, इन शॉर्ट आपको क्या करना है कि पार्शियल डेरिवेटिव दिए गए फंक्शन का निकालना है। यहाँ पे प्रोडक्ट में लिखा है एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब जेड 4, तो आप यहाँ पे तीनों का हर बार पहले x के बारे में, फिर y के बारे में, फिर z के बारे में निकाल सकते हो। सो द रिजल्ट विल बी लाइक दिस, लाइक एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब जेड 4। अगर वो फंक्शन का मैं x के साथ पार्शियल डेरिवेटिव निकालूं सो y एंड z रिमेन कांस्टेंट फॉर द डेरिवेटिव पार्ट ऑफ x, सो y क्यूब एंड z4 विल बी एज इट इज। और x स्क्वेयर का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x माने डेल f बाई डेल एक्स अगर सोचा जाए, फर्स्ट टर्म सोचा जाए, फिर से एक बार प्रीवियस लाइफ में मैं आपको बता दूं, वी आर डूइंग फर्स्ट डेल ऑपरेटर ऑन लेट अस से t की जगह आप f सोच लो, सो डेल f बाई डेल एक्स एक्स कैप, डेल f बाई डेल y वाई कैप एंड डेल f बाई डेल z एंड z कैप। तो पहले x का वे के साथ पार्शियल डेरिवेटिव, फिर y के साथ और फिर z का, और तीनों का x y कैप z y कैप सॉरी x कैप y कैप और z कैप के साथ समेशन। सो यहाँ पे 2x y क्यूब z4 x कैप प्लस 3x स्क्वेयर y स्क्वेयर z4 y कैप, और आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, ओके। मैंने तो सीधा आंसर लिख दिया है, अब कैसे अप्लाई करेंगे वो प्रॉब्लम नंबर 12 से मैं बताऊंगा। सिमिलरली ई रेस टू एक्स साइन वाई एल जेड, ध्यान से देखो ई रेस टू एक्स एक अलग फंक्शन है, साइन वाई देखो तो वो भी एक अलग फंक्शन है, एल एन ऑफ जेड वो भी अलग। सो इस तरह से आप सोच सकते हो, ओके। एक बहुत ग्रेडियंट कहाँ कहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये पूरी की पूरी जानकारी आप जब प्रॉब्लम नंबर 12 करोगे तो आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली मीन ऑफ ग्रेडियंट। सो बेसिकली अगर आप देखो तो कोई भी फंक्शन कैसे वेरी कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन पार्शियल डेरिवेटिव से निकल रहा है। तो x के यहाँ पे मैं देखो कि यहाँ पे अगर मैं ये स्मूथली चल रहा हूँ यहाँ पे, सो f इज़ नॉट वेरिंग, लेकिन यहाँ से मैं ऊपर जाऊँगा तो f इज़ इंक्रीजिंग। तो अगर यहाँ का मैं पार्शियल y डेरिवेटिव लूँ सो यहाँ पे डेल f बाई डेल y ज़्यादा आएगा, लेकिन डेल f बाई डेल x एवरेज आएगा, बहुत चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली z में, इसमें तो 2 डायमेंशनल है तो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन z के लिए z डिमेंशन आप सोच सकते हो। सो बेसिकली इट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन। नाउ जब आप डेल है वो बेसिकली तो डेरिवेटिव ही है, सो डेरिवेटिव इज बेसिकली एज आई टोल्ड इन वेरी बिगिनिंग इट इज़ नथिंग बट अ स्लोप, डी एफ बाई डी एक्स माने फंक्शन का एक्स के विथ रिस्पेक्ट में स्लोप, माने ये ग्राफ का मैं स्लोप निकाल रहा हूँ, ये इसका स्लोप या इसका स्लोप। और यहाँ पे देखो आप इसका डी एफ बाई डी एक्स लो तो यहाँ पे ज़ीरो स्लोप है। अगर मैं
वैली पॉइंट की जाऊँ तो यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है, अगर वैली पॉइंट इस साइड जाऊँ तो मैं नेगेटिव स्लोप है. सो इट्स टू डिपेंड व्हेन यू आर लोकेटेड. सो बेसिकली एफ फंक्शन का ग्रेडियंट निकालने से आपको वो पता चलेगा कि फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और वेदर द फंक्शन इज डिसेंडिंग, एसेंडिंग फंक्शन है या डिसेंडिंग फंक्शन है, वो भी आप पता कर सकते हो. सो लेट्स focus on a problem number 12, very interesting problem. I do request to all of you, please do the take pen and pencil and do the calculation by yourself. यहाँ पे मैंने थोड़ी हिंट दे दी है, तो उस पे से अगर आपको पता चले then you have to do the calculation. Okay, well in the next slide I have already calculated it, but I will be posted that slide separately. So my motive is to show you the variation, the interest to develop the solution by yourself. So okay, so let's try to understand what exactly the mean of what exactly the explanation are given in the problem number 12, whether the problem is digested by us or not. तो पूछा ऐसा है, the height of a certain hill, unit दे दिया गया है, the height will be coming, we will be getting, that will be the feet, is given by, तो h is a function, so height hill की माप रहे, तो h is a function of x and y. मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, शायद यू पीपल हैव ऑब्जर्व व्हेन यू आर ट्रैवलिंग ऑन एनी पर्टिकुलर रोड, स्पेशली न्यूली कंस्ट्रक्ट रोड और न्यूली साइट वेयर द एनी कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन, तो पीला टोपा पहन के कोई इंजीनियर ट्राईपोड लगा के कोई एक छोटा सा यूनिट में से कुछ ना कुछ मेजरमेंट लिखता दिखाई देगा, या तो रोड डेवलपमेंट के वक्त आपको दिखाई देगी. सो दिस ऑल आर द इंजीनियर्स and they are using a scope to measure the contours. That means आपके रोड के लेवल का इंफॉर्मेशन निकालते, कहाँ पे ऊंचाई है, कहाँ पे नीचापन है, और माने ऐसा एक ग्राफ बनेगा और वो ग्राफ को कॉन्टूर ग्राफ बोलते हैं, राइट. और वहाँ पे से आपको पता चलेगा कि कहाँ पे थोड़ी ऊंचाई है और कहाँ पे थोड़ी ढलान है, वो पता चल जाएगा. तो हिल है तो आपके पास दो कोऑर्डिनेट काफ़ी है, ठीक है. तो x और y कोऑर्डिनेट ही दिया गया है. सो मे बी द एज इज अ हाइट एंड हाइट इज अ फंक्शन ऑफ अ एक्स वाई कोऑर्डिनेट. माने एक्स वाई कोऑर्डिनेट अगर आप घुमाओ तो आप सोच सकते हो 3 डायमेंशनल है, सॉरी 2 डायमेंशनल है, और एक्स और वाई पोजीशन एक हिल की निश्चित ऊंचाई बताएगा कि भाई 0 0 पे हिल बहुत ही यू आर ऑलमोस्ट ऑन अ वैली और बॉटम पॉइंट ऑफ अ हिल, लेकिन थोड़े आगे जाओ तो हिल की चढ़ाई शुरू हो जाती है. सो दैट वे योर पोजीशन x and y डिफाइन वेदर यू आर ऑन अ हिल और यू आर अवे फ्रॉम द पिक पॉइंट ऑफ अ हिल और यू आर क्लोजर टू पिक पॉइंट ऑफ अ हिल एट्सेट्रा, ठीक है. तो h of x y and this is the equation is given. Now they are telling us, in addition to the example, where y is a distance, which is we will measure it into the mile, which is always in the north direction. So अगर हम ओरिजिन पे हम खड़े हैं ऐसा सोच लें तो y एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन की y एक्सिस बिकम माई नॉर्थ, x is the distance on the east and that is साउथ हेडली. कोई एक नाम दे दिया गया है जस्ट टू डाइवर्ट यू गाइस. सो बेसिकली आपको ईस्ट देखना है. अगर ईस्ट नॉर्थ अगर वाई एक्सिस पे अगर आप ले रहे हो तो ईस्ट विल बी ऑन योर राइट हैंड साइड, तो ग्राफ की पॉजिटिव एक्स एक्सिस है वो आपका ईस्ट हो गया. सो नेचुरली नेगेटिव एक्स एक्सिस आपका वेस्ट हो गया और नेगेटिव वाई एक्सिस आपका हो गया साउथ. एम आई क्लियर विद द क्वाड्रेंट? North is your positive y-axis, positive x-axis is your east, negative x-axis is your west, and negative y-axis is your south.
नाउ दे आर आस्किंग व्हाट इज़ अ टॉप ऑफ अ हिल। तो ऐसा सोच लो कि ये 4 क्वाड्रेंट में से कोई एक क्वाड्रेंट में आपका हिल का टॉप माने द पीक पॉइंट, ठीक है ना। अगर मेरी पीक पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x शुड बी नेगेटिव और y शुड बी पॉजिटिव। अगर हिल की टॉप पीक अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आपको पता चल जाएगा कि माई x कोऑर्डिनेट वुड बी नेगेटिव एंड y कोऑर्डिनेट वुड बी पॉजिटिव, करेक्ट। ओ सॉरी, बोथ विल बी नेगेटिव। एंड फोर्थ अगर आ जाए तो y कोऑर्डिनेट विल बी नेगेटिव एंड द x कोऑर्डिनेट विल बी पॉजिटिव। तो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आपको हिल की लोकेशन पता चल जाएगी कि वो नॉर्थ में है या। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ही इज आस्किंग इन अवर फर्स्ट क्वेश्चन कि अगर ये इक्वेशन है कौन सा, h ऑफ x ऑफ y 10 ऑफ सो एंड सो सो सो, देन वेर इज द टॉप ऑफ द हिल लोकेटेड, ऊंचाई उसकी पीक कहाँ पे है। तो पीक फाइंड आउट करने के लिए माने हाइट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो आपको एक फंक्शन दिया गया है। कैसा दिया गया है फंक्शन, जो दो वेरिएबल पे डिपेंडेंट है। कैसे दो वेरिएबल है, एक्स और वाई। तो आपको सोचना है कि एक्स वाई आपने नीचे ले लिया और हाइट है वो एच ऑफ एक्स वाई वो वाई एक्सिस पे लिया है हाइट, और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आपने नीचे प्लेन में लिया है, ठीक है। अगर आप एक्स चेंज कर रहे हो तो हिल की लोकेशन चेंज होगी, वाई चेंज कर रहे हो तो वाई की लोकेशन चेंज होगी, ओके। अगर आप ग्रेडियंट ले रहे हो तो आपको क्या पता चल रहा है, हाउ फंक्शन इज चेंजिंग। अगर आप पीक के बारे में सोचो तो पीक कहाँ पे होगी, सबसे ऊंचाई पे। अगर ऊंचाई पे, मैं आपको पीछे ले जाके और एक हिंट देना चाहता हूँ। अगर ये हिल है, ठीक है, सो बेसिकली डेल टी बाई डेल एक्स, डेल टी बाई डेल वाई, डेल टी बाई डेल जेड, अगर यहाँ पे मैं निकालूँ अपर पॉइंट पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो फंक्शन का कोई स्लोप ही नहीं है। दैट मीन्स द फंक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू or it could be have a minimum value. Are you getting me? So the slope will be equivalent to 0. That means you are at the maxima minima point. ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। तो अगर ये मैं दिए गए फंक्शन हिल की हाइट का फंक्शन h ऑफ एक्स वाई का अगर मैं ग्रेडियंट निकाल लूँ तो मेरे पास एक क्लियर पिक्चर आ जाएगा कि कौन सी दिशा में आगे बढ़ने से ऊंचाई मिल रही है कि नहीं। एम आई क्लियर? फिर से बता रहा हूँ कि जैसे कि टेम्परेचर, अगर आप ऊपर की तरफ रूम की जा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर नीचे की तरफ जा रहे हो तो टेम्परेचर नहीं कम हो रहा है, अगर एक्स की दिशा में जा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर माइनस एक्स की दिशा में जा रहे तो डायरेक्शनल डिपेंडेंट हो गया। तो उसी तरह हिल है, उसका लोकेशन एक्स और वाई के लोकेशन की वजह से आपको मैक्सिमा मिल सकता है। मैक्सिमा कब मिलेगा, जब आप उसका ग्रेडियंट ज़ीरो होगा, सो मैक्सिमाइज होगा। सो अगर मैं ये एच फंक्शन का ग्रेडियंट लूँ तो अगर वो ग्रेडियंट, अगर स्लोप अगर आप है ही नहीं माने कांस्टेंट है, स्लोप ही नहीं है क्योंकि ऊपर प्लेटो पोर्शन है, हिल पे टिप है, तो वहाँ पे तो स्लोप आएगा नहीं। अगर वहाँ पे स्लोप नहीं आया तो चेंज ऑफ फंक्शन विल बी ज़ीरो, तो आपका रिजल्ट ज़ीरो है। तो मैक्सिमाइज ढूंढने के लिए आपको क्या ढूंढना था, टॉप ऑफ द हिल। मैक्सिमाइज ढूंढने के लिए आपको ग्रेडियंट को इक्वेट टू ज़ीरो करना पड़ेगा। सो अगर डेल ऑफ एच इक्वल टू ज़ीरो करो तो आपको ग्रेडियंट मिलेगा। और जब आप उसको इक्वेट करोगे ज़ीरो तो मेरे पास दो इक्वेशन बन सकते हैं और उस पे से मैं x और y को फाइंड आउट कर सकता हूँ, और x और y कोऑर्डिनेट मिल गए तो उसका मुझे लोकेशन भी मिल सकता है। ये हिंट नंबर 1। हिंट नंबर 2, हाउ हाई इज़ द हिल। हिल अगर ढूंढ लिया आपने तो कितनी ऊंचाई पे है, तो बहुत सिंपल है। अगर x y मिल गए तो ये यहाँ पे रख दो तो आपको
एच ऑफ एक्स ऑफ वाई मिल जाएगा, माने एच की और एक्स और वाई पोजीशन पे उसकी हाइट मिल जानी चाहिए। तो जो आपका आंसर ए में मिला, अगर वो दिस इक्वेशन में अगर आप रख दो तो आपको मिल जाएगा हाइट ऑफ द हिल। लास्ट पॉइंट, अगर आप हिल पे थोड़े थोड़े क्लाइंब कर रहे हो, यहाँ पे एक बहुत अच्छा मैं नमूना आपको दे रहा हूँ। अगर आप एक्स की दिशा में ही आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, तो देखिए हिल का स्लोप कांस्टेंट हो गया। लेकिन अगर हिल में अगर आप थोड़ा स्लांटली ऊपर चल रहे हो, सो नेचुरली आपका स्लोप कुछ ना कुछ तो आएगा। आर यू गेटिंग मी? फिर से बताना चाहूँगा, अगर हिल में स्ट्रेट आप एक ही स्तर एक ही प्लेन पे चलते हो तो हाइट में कोई वेरिएशन नहीं है। लेकिन अगर आप दोनों एंगल के बीच में चल रहे हो, माने हॉरिजॉन्टल भी नहीं और वर्टिकल भी नहीं और स्लांट चल रहे हो, सो नेचुरली आपको ड्रास्टिकली चेंज इन द स्लोप मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये है, हाउ स्टीप इज़ द स्लोप व्हेन एट अ पॉइंट 1 माइल इन द नॉर्थ, माने नॉर्थ में किसको बोल रहा हूँ, पॉजिटिव वाई एक्सेस को, एंड 1 माइल इन द ईस्ट, माने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बारे में बात करें, माने एक्स इज इक्वल टू बी 1, वाई इज इक्वल टू बी 1, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द स्लोप, माने स्लोप क्या होगा, माने दे आर आस्किंग डेल एफ बाई डेल एक्स, या तो डेल एफ बाई डेल वाई पूछ रहे हैं। एंड द सेकेंड वो पूछ रहे हैं कि एट दैट पॉइंट स्लोप कितना होगा, सो इन व्हाट डायरेक्शन दैट स्लोप एंड एट दैट पॉइंट, तो वो बिंदु जहाँ पे आप स्लोप ढूंढ रहे हो वो कौन सी दिशा में आया वो भी ढूंढना है। तो वो कैसे ढूंढेंगे, तो वो ऐसे ढूंढेंगे कि एक्स और वाई 1 1 करके आप इसके ग्रेडियंट फंक्शन में अगर आप रख दो, माने डेल एच में अगर आप रख दो, तो जहाँ पे वो मैक्सिमम मिल रहा है, बिकॉज ही हैड आस्क्ड दैट डायरेक्शन ऑफ द स्लोप, माने ग्रेडियंट लेना पड़ेगा और इक्वेशन जो इसका ग्रेडियंट फंक्शन है वहाँ पे आपको रख देना पड़ेगा और आपको डेल एच मिल जाएगा, माने उसका स्लोप मिल गया आपको। स्लोप लेने के लिए आपको ग्रेडियंट लेना पड़ेगा, डेल ऑफ एच बाई डेल एक्स एज वेल एज डेल ऑफ एच बाई डेल वाई। तो वो मिल जाने के बाद आप सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, सो दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ द स्लोप, ठीक है। एंड डेल एच जब ग्रेडियंट निकालोगे तो नेचुरली एक्स कैप और वाई कैप आएगा और एक्स कैप और वाई कैप से उसकी दिशा पता चल जाएगी। सो ग्रेडियंट से हमें दिशा पता चलेगी कि कौन सी दिशा में फंक्शन कैसे चेंज हो रहा है, और एक्स और वाई 1 1 दिया है तो उसकी अगर मुझे जांच करनी है तो मैं उसका मैग्नीट्यूड निकाल लूँ तो मुझे उसकी स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी। So that is one, and also check it up the problem number 13. Okay, all the best. Try to solve the problem by yourself, and my just next lecture I am sending you the immediately as a PDF, and that would be your solution of your example number 12 and example number 13. Thank you so much. Be focused, and hopefully we are opening the college as per the new guideline of the government, but at the same time it is also online availability. With your kind permission of your parent, you may join, or you can stay at your home and you can continue your study online. Choice is yours with your consent of your parents. Stay home, stay safe. Thank you so much.